काम एंड कंपोज रहो थ्रू आउट योर जर्नी, बी कंसिस्टेंट, ज़्यादा हरी भी नहीं करनी हर चीज़ में, एंड जस्ट बी काम, कंपोज, चिल करके पढ़ाई करो, अपने आप को देखो आप कहाँ लैग कर रहे हो एंड उस पर इम्प्रूव करो. हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू कैमोमाइल टी विद टॉपर्स, एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी. आज मेरे साथ है मेरे जूनियर अभिनव. हाय अभिनव. हेलो सर. Okay. So I am Chaitanya Mittal, All India Rank 4 in the AIMS 2019 entrance examination. So I have been in your place where I was listening to these interviews. I have been in his place where I had given this interview. And today I feel very proud to be taking his interview. And मैं समझता हूँ कि as an aspirant क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं. एंड मैं आज अभिनव से वो सब सवाल पूछूंगा. एंड आई एम श्योर जो भी वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और जो भी टिप्स अभिनव आपको बताएगा, दे विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू एंड यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर प्रिपरेशन यूजिंग देम. So first of all, congratulations Abhinav. Thank you sir. How do you feel on reaching AIMS Delhi? That is the dream medical college for any medical aspirant. Sir, as you said, it's like a dream come true. I never imagined I would be studying in AIMS Delhi, and it's just amazing feeling, very amazing. Okay. तो कैसा लगा था जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? एंड आई नो दैट अभिनव इज अ ड्रॉपर. तो टेल अस अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट योर एंटायर जर्नी स्टार्टिंग राइट फ्रॉम क्लास 11 या जब से भी तुमने पढ़ना शुरू किया था. So basically in like 11th and 12th class I didn't study much for NEET. मैं बस ऐसे ही स्कूल के लेवल तक का पढ़ता था एंड स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ता था. So I decided कि मैं ड्रॉप लेके एक ढंग से प्रिपरेशन करूँगा. So I took a drop in 2020 after 2020 and then I joined a coaching institute. I started studying and then वो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी. वहाँ से मैंने like seriously थोड़ा पढ़ना शुरू करा था and ended up scoring decent marks in 2021. I scored 593 in 2021 but still couldn't get a medical college. And then it was a dilemma whether to drop again or whether to take something else. And I was thinking of taking BDS as a subject. But then my parents suggested me you should take another drop as you were so close to the cutoff. So you can do you can drop and do great next time. So I decided to take a drop again, and I am very happy I took a drop because it paid off. Yes, very well paid off. I am here at AIMS Delhi. I never imagined I would be studying at AIMS Delhi. So I think this itself is a very inspiring journey. So that was Abhinav Goswami for you guys. He's a 2 times dropper. He has taken a drop 2 times, and from what I understand, the second drop year was completely self-study. Yes. There was no coaching during that drop year. No sir. So I think बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि उन्होंने पहले कभी कोचिंग ली है एंड उन्हें डर लगता है कि हम अपने ड्रॉप ईयर में दोबारा अगर कोचिंग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो जाएगा. सो व्हाट आर योर थॉट्स अराउंड दैट? क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होता है? एंड सिंस यू हैव क्रैक्ड इट विद सेल्फ स्टडी, do tell our aspirants about it. So it's not like कोचिंग करनी ही करनी है हर प्रिपरेशन में आपकी. अगर आपने पहले कर चुके हो तो you have the resources, you know what is asked in the paper. So आपको बस उस हिसाब से अपने हिसाब से देखना है कि आप कहाँ लैग करते थे. उस हिसाब से you prepare your schedule, strategy, everything you should prepare according to you. एंड मैंने भी वही किया था. आई नो कि मेरे को कहाँ गलती मैंने करी थी. सो रिसोर्सेज थे, कोचिंग के नोट्स थे एंड मॉड्यूल्स थे, वही वापस प्रैक्टिस किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए एंड धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज होते गए टेस्ट में एंड देन पूरा अच्छा स्कोर आ गया उसके बाद. So would you like to share with our aspirants when you gave your first attempt after class 12, what was your score in NEET? I scored 425 marks in NEET 2020. 425. Yes. And then first drop, what was your score? I scored 593 marks in 2021. And what was your final score which got you to AIMS Delhi? I finally scored 692 in NEET 2022. So guys, that is consistency. You get an increase of 100 marks, you take a drop and you have confidence in yourself. बिकॉज ऐसे कई बार ऐसा हम सोचते हैं कि हम यार BDS ले लेते हैं या हम ये कर लेते हैं, बट इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट तो आई थिंक इट इज एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड दैट स्काई इज द लिमिट वाली बात है ना. ट्रू सर. तो व्हाट मोटिवेटेड यू टू टेक
medicine? What motivated you to do MBBS? So basically, it was my childhood dream. Like from my childhood only. I don't remember why, but I just wanted to become a doctor, and then I continued to aim for MBBS. Ki I would become a doctor. I would become a doctor, and then that's what pushed me to take multiple drops, and then finally I'm in MBBS now. That's great. So Abhinav here, he's from Delhi itself, and tell us a little bit about your hobbies. What do you like to do in your free time, and how did you used to relax, especially during your preparation years? I like to play basketball and badminton. I also play online games on Esports. Yes, yes, and basically I कौन go सी गेम खेलते थे? COD, Valorant. Valorant. Okay. Valorant, Rocket League, and etc. And then I was also into workout and gym. So I used to do gym for relaxing from my daily schedule. During my preparation also I was doing my gym. So it really helped me to take a break from my daily schedule, and it also helped me physically because I lost a good amount of weight through that. Okay. So as you can see, that's a quite a multifaceted personality. Weight loss भी किया, gymming भी करी साथ में, and then you were also able to have Valorant in esports. Yes, sir. तो I have seen कि especially मेरे को भी college में आके I played CS:GO a little, तो वो थोड़ा addictive हो जाता है. Yes. So how do you avoid that sort of mobile phone addiction or try to जैसे gaming का एक बार कीड़ा लग जाता है तो उसको it gets difficult to control. तो तूने उस चीज़ को control कैसे किया? सर काफ़ी मुश्किल था कंट्रोल करना, बट मैंने जब भी मुझे दिखता था कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, सो आई यूज़ टू स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप कर देता था ताकि मैं लाइक ट्रैक पे आ जाऊँ. एंड मैं गेम्स तभी खेलता था जब मेरा लाइक डेली जो टारगेट था वो मेरा कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं टाइम वेस्ट ना करूँ. रैदर अपना टारगेट कंप्लीट करा, देन यूज़ टू एंटरटेन के लिए थोड़ा गेम्स खेल लिया, एंड देन वापस पढ़ाई. That's nice. तो एक पॉजिटिव रिवॉर्ड हो जाता है तुम्हारे Yes. लिए दिन में कि अब मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है एंड मैं गेम खेलूंगा. तो दैट बिकम्स अ रिवॉर्ड साइकिल Yes, एंड sir. दैट मोटिवेट्स यू टू हसल. दैट्स ग्रेट. सो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू फॉर ऑल द सिंस काफ़ी सारे ड्रॉपर्स भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसी कोई स्पेसिफिक टिप्स हैं जो आप अपने ड्रॉपर्स को बताना चाहेंगे, वो अपनी प्रिपरेशन के लिए ऐसा क्या करें कि एक ड्रॉपर को बहुत हेल्प हो? बेसिकली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेंटली आपको काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ता है एज अ ड्रॉपर, क्योंकि आप एक बार फेल हो चुके हो, एंड देन यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ कि अगले साल भी होगा या नहीं होगा. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेंटली आप बहुत स्ट्रांग रहो. एंड देन आपको ज़्यादा फ्यूचर की नहीं सोचनी चाहिए कि नेक्स्ट साल नहीं होगा. आपको अपना रोज़ का देखना चाहिए कि आप पढ़ते रहो, होगा जो होगा वो बात की बात है. यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट. इतना हेड के लिए सोचना नहीं चाहिए. सो एंड आप सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, लाइक पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स होते हैं जो अच्छे होते हैं, उनसे बात करा करिए. एंड यही है बस मेन जो चीज़ है ड्रॉपर के लिए कि एक मेंटल स्ट्रेंथ. तो ऐसी क्या चीज़ें थी जिन्होंने आपको वो सेल्फ डाउट रिजॉल्व करने में हेल्प किया? जैसे आपने बताया आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जिन्होंने वो सेल्फ डाउट दूर किया एंड गेव यू द मोटिवेशन टू कीप गोइंग? सर पेरेंट्स सबसे बड़ा मोटिवेशन थे, क्योंकि वो हमेशा, मैं जब भी डाउट करता था, दे वर लाइक वी नो कि तेरे में है कैपेबिलिटी है, यू कैन डू इट. तो ऐसे लाइक हार मत मान, जस्ट कीप वर्किंग. एंड फ्रेंड्स भी थे काफ़ी, तो वो भी मोटिवेट करते थे ऐसी. तो उनकी बात सुन के खुद से भी एक थोड़ा अंदर से आता था कि हाँ आई कैन डू इट, वाई, मतलब मैं क्यों गिव अप करूँ. तो उससे काफ़ी मोटिवेशन आता. देन थोड़ा पढ़ाई करता था, मार्क्स आते थे तो और मोटिवेशन आता था कि हाँ हो सकता है. एंड कभी कभी जब ये सोचा होगा कि क्या मैं अपना एक ईयर वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब तो उस क्वेश्चन का आंसर अपने मन को कैसे दिया कि ये मैं ईयर वेस्ट नहीं कर रहा हूँ बट इन्वेस्ट कर रहा हूँ? सर वही था कि वन डे इट विल पे ऑफ. एंड वही मेरे दिमाग में था कि कभी ना कभी अगर कुछ होता है तो अच्छे के लिए होता है. ड्रॉप करा, 2 साल ड्रॉप करा, कुछ अच्छे के लिए होगा. आई यूज टू इमेजिन दैट कि कोई नहीं, ड्रॉप करा है कोई नहीं. एंड देन अभी फाइनली इट इज़ लाइक आपके सामने है कि अगर मैं ड्रॉप नहीं कर रहा होता तो पता नहीं कहाँ होता, बट आई एम इन एम्स दिल्ली नाउ. तो वही एक मोटिवेशन था कि everything happens for a reason, just keep working on your thing. That's great, that's very positive as a message to you all. तो अब हमें एक डिटेल्ड जर्नी की डिस्कशन में चलते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए.
तो ideally, when should someone start preparing for the NEET entrance? Let's say for a dropper. फॉर अ ड्रॉपर जस्ट आई वुड सजेस्ट कि जस्ट आप नीट देकर आए हो, थोड़ा रेस्ट करो, अपने माइंड को फ्रेश करो, प्रिपेयर करो फॉर अ ड्रॉप ईयर एंड देन जस्ट स्टार्ट स्टडिंग. डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम कि बाद में कर लेंगे, अभी तो दिया है. ऐसा कुछ नहीं करना है. थोड़ा सा ब्रेक लो, जितना आपको सही लगे, माइंड फ्रेश कर लो एंड देन स्टार्ट स्टडिंग अगेन. So how much time do you think is sufficient to crack the NEET entrance if you are a dropper? Let's say you have studied the syllabus once. सर 6 to 7 months आर मोर देन इनफ. तो since the syllabus is so vast, जैसे physics, chemistry, bio and overall बहुत सारे chapters हो जाते हैं, तो how should an aspirant understand the syllabus and how should the aspirant go about such a huge syllabus? एक साथ सारा सिलेबस मत करो, स्टेप बाय स्टेप जाओ. लाइक स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसको उठाओ, उसको थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, उसके चैप्टर्स करो, क्वेश्चंस करो. यू विल कम टू नो कि कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है एंड धीरे धीरे उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाओ. तो धीरे धीरे आपका वास्ट सिलेबस आप कवर कर पाओगे जल्दी से ऐसे. तो इस सिलेबस को कवर करने के लिए जो स्टडी प्लान बनाया होगा वो कैसा था कि मतलब सिलेबस कब तक ख़त्म करना है, रिविजन्स कब स्टार्ट करनी है, मॉक टेस्ट्स कब देने हैं? सर ड्यूरिंग माई सेकेंड ड्रॉप ईयर मैंने स्टार्टिंग से ही क्योंकि मेरा थोड़ा फ्रेश था माइंड, ऑलरेडी मुझे थोड़े कॉन्सेप्ट्स याद थे लास्ट ड्रॉप के, तो मैंने तो सीधा रिवाइज करना शुरू कर दिया. मतलब एक रैपिड रिवीजन करा ताकि एक बार वापस रिकॉल हो जाए सब कुछ. एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग मॉक टेस्ट अभी से ही. Like I gave 1.5 months for a rapid revision and then I started giving mock test and continued till my NEET. Okay, so how many mock tests did you give in this journey? Sir, around 100 and 150 during my last drop During year. your second drop year. Yes. एक साल के अंदर you gave around 100 to 150 mock tests. Yes sir. Okay, so what are the importance of mock tests? क्योंकि हम सब mock tests देते हैं. How do we utilize them effectively कि हम अपनी preparation को improve कर सकें? सर मॉक टेस्ट देकर आपको पता लगता है कि आपकी एग्जैक्टली गलती का हो रही है. इट कैन बी कंसेप्चुअल मिस्टेक, इट कैन बी अ सिली मिस्टेक एंड इट कैन बी टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक ऑल्सो. तो उससे आपको पता लगता है कि आप एक्चुअली कहाँ लैक कर रहे हो. एंड जब आप काफ़ी मॉक टेस्ट दे देते हो देन यू गेन अ कॉन्फिडेंस ऑल्सो. तो आपको रियल एग्ज़ाम में इतना स्ट्रेस नहीं होगा जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दे चुके होगे ऑलरेडी. एंड वही है, उसको जो भी मॉक टेस्ट में आपकी गलती है उनको आप इम्प्रूव करो एंड उन पे वर्क करो, वापस ट्राई करो, वापस वो गलतियाँ ना हो. एंड देन इससे आपका स्कोर भी इम्प्रूव होता रहेगा धीरे धीरे एंड फाइनली आपका जो मेन एग्ज़ाम है वो भी अच्छा जाएगा. राइट. तो आई थिंक एक चीज़ जो और होती है वो ये होती है कि मॉक टेस्ट के बेसिस पे वी इवॉल्व आवर ओन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी. एंड सिंस यू हैड गिवन नीट बिफोर ऑल्सो, तो हाउ वॉज योर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड हाउ डिड इट इवॉल्व इन योर फर्स्ट ड्रॉप एंड सेकेंड ड्रॉप? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इट वाज जस्ट रैंडम. आई अटेम्प्टेड, आई डिडंट हैड एनी स्ट्रैटेजी. कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, बस रैंडम पेपर में जो क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट कर दिया. देन बाद में आई डेवलप्ड अ स्ट्रैटेजी कि बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करो, देन आई यूज्ड टू अटेम्प्ट फिजिक्स फर्स्ट देन केमिस्ट्री, बट वो मैंने सेकेंड ड्रॉप में चेंज किया. सेकेंड ड्रॉप में चेंज किया क्योंकि मेरा बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री जल्दी हो जाता था, तो इट गेव मी अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर फिजिक्स, तो मैंने उसको इसलिए एंड में रखा. तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी. सो योर सजेशन इज कि जो हमारे स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट्स हैं हम उनको पहले खत्म करें एंड जो भी हमारा वीक सब्जेक्ट है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, उसको हम लास्ट के रखें. तो आई थिंक यहाँ पे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी वुड हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर यू सिंस इट वाज अ मेजर चेंज दैट यू मेड फॉर योरसेल्फ. राइट. तो अगर हम अब सब्जेक्ट वाइज थोड़ा चलें, बात करें, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसमें बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं सिंस इट वाज द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट यू अटेम्प्टेड. तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर बायोलॉजी? सर बायोलॉजी के लिए मेनली एनसीईआरटी है, जैसे सब बोलते हैं. एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग्स करो, बार बार उसको रीड करो, थोड़े थोड़े टाइम में रीड करते रहो. मतलब एनसीईआरटी तो रोज़ रीड करनी ही करनी है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए बायो की. एंड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो एंड कई मॉड्यूल से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो. उससे काफ़ी कवर हो जाता है, मैक्सिमम उससे ही कवर हो जाता है. एंड एंड में भी वही है, एनसीईआरटी तो पढ़ के जानी ही जानी है, उसके अलावा इतना नहीं पढ़ना होता. मेन एनसीईआरटी है. क्या सही तरीका है एनसीईआरटी को पढ़ने का, क्या सही तरीका है एनसीईआरटी को रिवाइज करने का, एंड अप्रोक्सीमेटली कितनी बार एक इंसान को एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए पढ़नी चाहिए? सर मेरा था, मैं एक चैप्टर को रैपिडली पढ़ता था विदाउट एनी ब्रेक. मैं पढ़ता रहता था चाहे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा. देन आई यूज्ड टू
विजिट दैट चैप्टर अगेन थोड़े टाइम बाद, सेम चीज़ करता है, देन अगेन, तो 1-2 रीडिंग्स के बाद मतलब मेमोराइज हो जाता था काफ़ी चीज़ें। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी क्योंकि मेरे को ये सूट करता था, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ता था शुरू से। एंड अबाउट रिविजन्स कितने, आई थिंक एटलीस्ट 6-7 टाइम्स तो पढ़नी चाहिए NCERT बायो की दोनों। 6-7 टाइम्स दोनों NCERTs हाँ. पढ़नी चाहिए, राइट। एंड दैट्स अ वेरी गुड वे टू गो थ्रू इट कि आप बार बार रैपिड रिविजन्स ले रहे हैं NCERT की, एंड धीरे धीरे इवेंचुअली जो चीज़ें नहीं भी समझ आ रही हैं वो समझ आने लगती हैं, है ना। ठीक है। और उसके अलावा सेकंड सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। तो इनमें से आपको क्या ज़्यादा आसान लगता था? सर ऑर्गेनिक एंड फिजिकल बोथ। ऑर्गेनिक एंड फिजिकल बोथ वर इजी टू यू। Yes. तो लेट्स स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे डील करें। इनऑर्गेनिक के लिए NCERT आई गेस इज़ इनफ, मतलब उसमें काफ़ी कंटेंट है, वही थोड़ा लाइक अच्छे से डिपिक्ट नहीं करा है, उसको थोड़ा अपने आपको अलग से लिखना पड़ता है। तो बाकी NCERT इज़ इनफ, उसके में से आप ऑर्डर्स वगैरह अलग से लिख लो। जैसे मैं तो वही करता था, टेबल्स में से ऑर्डर्स निकालता था, उनको अलग से एक पूरे पेज पे लिखता था, हर ग्रुप का वगैरह का ऐसे। एंड वही है, NCERT को फोकस करो, एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं पूछा जाता नीट में, NCERT इज़ मोर देन इनफ। सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आफ्टर दैट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं अपने कोचिंग के नोट्स फॉलो करता था। उसमें कोचिंग के नोट्स पढ़ के देन आई यूज्ड टू स्टडी उस चैप्टर की NCERT, एंड देन फाइनली मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था। एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑर्गेनिक को लिंक करने का ट्राई करो। वेरियस रिएक्शन है, चाहे 11th की 12th की, उनको लिंक करो तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। मतलब उनके मैकेनिज्म्स के थ्रू उनको अंडरस्टैंड yes. करके। ओके। एंड व्हाट अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री? फिजिकल तो बेसिकली वही है कि फॉर्मूलेज याद करो, एंड थोड़ी बहुत थ्योरी होती है उसमें, वो तो NCERT से हो जाएगी। एंड बेसिकली फॉर्मूलेज पे फोकस करो, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे मेन चीज़ है फिजिकल में, उसके बिना फिजिकल आपकी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। ओके। एंड अगर मैं ओवरऑल इन दो सब्जेक्ट्स को लेके चलूँ तो व्हाट वर द बुक्स दैट यू यूज्ड टू प्रैक्टिस बायोलॉजी आल्सो एंड केमिस्ट्री आल्सो एंड इवन फिजिक्स? फॉर बायोलॉजी I used to NCERT at your fingertips, and mainly प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होता था, वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं, बाकी थ्रू टेस्ट वगैरह से पूरी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती थी। एंड केमिस्ट्री के लिए मॉड्यूल्स कोचिंग के, एंड वही NCERT at your fingertips थोड़ी सी सॉल्व की थी, ज़्यादा नहीं की। एंड PYQs फिजिक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, PYQs हर सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। एंड फिजिक्स के लिए एडिशनली मैंने DC पांडे सॉल्व की थी फॉर बोथ क्लास 11 एंड क्लास 12? यस। उसके अलावा मैंने कोई नहीं की, बाकी फॉर एवरी सब्जेक्ट थ्रू टेस्ट से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते, मतलब प्रैक्टिस होती थी। ओके, सो इफ यू गिवन इनफ टेस्ट तो आई थिंक इतना बुक्स में करना इज सफिशिएंट। यस। ओके, सो सिंस यू सॉल्व्ड DC पांडे इन फिजिक्स, तो हाउ वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर फिजिक्स? कहाँ से फिजिक्स पढ़ी, कैसे उसको रिवाइज किया? फिज़िक्स के लिए वही कोचिंग के नोट्स पढ़ता था, रीड करता था, देन उसको क्वेश्चन सॉल्व करने, फर्स्ट मैं PYQs करता था ताकि आइडिया हो जाए कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देन उसको डीप जाने के लिए मैं DC पांडे सॉल्व करता था, उसके जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करता था। एंड फिर कुछ नहीं आता था कंसेप्ट तो वापस उसकी थ्योरी पढ़ो, ढंग से पढ़ो, एंड फिर भी नहीं आता तो डाउट्स पूछो अपने टीचर से। Were there any specific things that you used to make these notes? कि जैसे नोट्स में बनाने के लिए आपने कुछ स्पेसिफिक तरीका यूज़ किया हो, या if there were any tips related to note making that you have for all the aspirants? फिज़िक्स के लिए तो बेसिकली लेक्चर से ही नोट बनाए थे, ऐसा कुछ अलग नहीं था। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में बोथ लेक्चर भी मिक्स था, एंड देन एडिशनल जो भी आपको क्वेश्चंस करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी मैं नोट्स में ही ऐड कर देता था, तो उसका वो कंपाइलेशन होता था पूरा। Okay. And what was your daily routine like during this preparation? Did you make a timetable? No, I didn't make a timetable. तो कैसा रहता था डेली रूटीन ऑलमोस्ट आपका 11th 12th और आपके ड्रॉप्स में? 11th 12th में तो बेसिकली स्कूल एंड ट्यूशंस में निकलता था पूरा दिन, एंड देन ड्रॉप में तो आई यूज टू मतलब सुबह उठ के थोड़ा पढ़ा, देन अ लिटिल ब्रेक, मतलब मैं काफ़ी ब्रेक्स में पढ़ता था। मैं लगातार बिल्कुल नहीं पढ़ पाता था, मेरा अटेंशन स्पैन इतना नहीं था, तो मैं ब्रेक्स काफ़ी लेता था। बट आई यूज़ टू कि मैं कर लूँ जो मैंने आज वो करा है टास्क, वो मैं पूरा करके ही लाइक एंड करूँ अपना डे, वो मेरा टारगेट होता था रोज़ का।
तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी देर पढ़ने के बाद एक ब्रेक लेना चाहिए और वो ब्रेक कितनी देर का होना चाहिए? मैं अराउंड 1 या 2 आवर्स के स्टडी के बाद ब्रेक लेता था. ब्रेक कैन बी फॉर एन हाफ एन आवर और फॉर 1 आवर डिपेंडिंग कि आपका माइंड कितना उस टाइम सही है कि नहीं. तो अभी हमने मॉक टेस्ट की बात करी एंड मॉक टेस्ट जैसे 100 to 150 अटेम्प्ट करे, तो हाउ डिड यू एनालाइज दोज मॉक टेस्ट और उन मॉक टेस्ट की गलतियाँ कैसे रिवाइज करी या एनालाइज करी या डाउट्स लिए? मॉक टेस्ट का बेसिकली देने के थोड़े टाइम बाद आई यूज़ टू सिट विद अ पेपर आंसर की, उसमें लाइन वाइज लगाता था एंड मैं उसमें मार्क भी करता था जो क्वेश्चंस मेरे ठीक हैं बट मैंने जस्ट ऐसी रैंडम गेसेस से कर लिए या कुछ भी कंसेप्ट लगा के बस कर लिया सॉल्व, तो उसको भी मार्क करता था. जो गलत है वो मार्क किए, देन उन सारे क्वेश्चंस को बैठ के मैं खुद वापस सॉल्व करता था, मेनली फॉर फिज़िक्स. बायो तो थ्योरी है पूरी, एंड देन उनको सॉल्व करता था. उनकी वो देखता था की से पता लगता था क्या गलत करा है क्या सही करा है, एंड देन उसकी थ्योरी पढ़ता था कि मैं थ्योरी सही समझ रहा हूँ उस टॉपिक की या नहीं, ऐसे. एंड देन जो मिस्टेक्स होती थी वो मिस्टेक एक कॉपी थी मेरी, वो भी मैंने बनाई थी, उसमें मैं सारी मिस्टेक्स हर टेस्ट की नोट करता था सब्जेक्ट वाइज. तो हाउ डिड यू यूज दिस मिस्टेक्स कॉपी टू इम्प्रूव योर प्रिपरेशन? मिस्टेक कॉपी को मैं हर 5-6 डेज में रिवाइज करता था, तो उससे जो भी पुरानी मिस्टेक्स थी सारी कवर हो जाती थी. एंड एट द एंड ऑफ द मतलब जस्ट नीट से पहले भी अच्छे से पूरी रिवाइज की थी, तो उसमें काफ़ी जो पूरी कंपाइलेशन होती थी हमारी मिस्टेक्स की वो सारे कवर हो जाता था. एंड सारे जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो भी उसमें नोटेड थी, तो सब उस चीज़ उससे कवर हो जाती थी. ओके. और एक ऐसा होता है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब हमारे काफ़ी बार कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे होते हैं एंड वी आर मेकिंग यू नो अ लॉट ऑफ एरर्स. तो जो प्रैक्टिस में वो एरर्स होते हैं, हाउ डू वी करेक्ट देम एंड समटाइम्स इट ऑल्सो डीमोटिवेट्स यू, तो हाउ डू यू गेट ओवर दैट डीमोटिवेशन एंड कीप गोइंग? करेक्शन के लिए तो बेसिकली वही है, आप जो भी गलत हो रहा है उसका वापस पढ़ो कि आप क्यों गलत कर रहे हो, उसका लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट तक जाओ कि क्यों गलत है. आपका कॉन्सेप्ट आपको पता है तो फिर भी आपसे क्वेश्चंस क्यों नहीं सॉल्व हो रहे. एंड डीमोटिवेशन के रिगार्डिंग वही है, मैं जब भी मेरे को डीमोटिवेटेड होता था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो मैं ब्रेक लेता था. ब्रेक थोड़ा हेल्प करता था, उसको थोड़ा माइंड को काम करता था, देन वापस क्वेश्चंस करने आता था तो उससे बेटर भी होते थे, वापस क्वेश्चन सॉल्व होने लगते थे. तो ब्रेक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इफ़ यू फील लाइक. ओके. अगर कोई एस्पिरेंट है जो अभी पढ़ना स्टार्ट करना चाहता है एंड दिसंबर में दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग, दे हैव देयर एग्जाम इन May 7, 2023, सो हाउ डू दे गो अबाउट द प्रिपरेशन? क्या आइडियल स्ट्रैटेजी रहेगी उनके लिए ऐसे प्रिपेयर करने में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि अपने जो भी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है उनको पिन पॉइंट कर लो कि मुझे ये आता है एंड ये नहीं आता. देन मैं कहूँगा कि पहले वीकनेस पे इम्प्रूव करो कि उसको ट्राई करो स्ट्रेंथ बनाने की. एंड फॉर रिगार्डिंग सिलेबस, पहले एक बार सिलेबस पूरा एक बार कंप्लीट कर लो एंड देन स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट. चाहे आता है नहीं आता, मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट देने ही देने हैं ताकि आपका प्रैक्टिस बनी रहे. एंड देन मॉक टेस्ट के साथ साथ आप रिवाइज करते रहो कि जो जो चैप्टर्स मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं उन चैप्टर्स को रिवाइज करते रहो एंड पैरेलल बाकी रिवीजन भी करते रहो, मेन जो रिवीजन चल रहा है. ऐसे करता था मैं. शुड मॉक टेस्ट बी गिवन? अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो क्या उसको मॉक टेस्ट देने चाहिए? यस सर, मॉक टेस्ट देने चाहिए, कभी भी दे सकते हो. थोड़ा डीमोटिवेटेड फील होता है जब मार्क्स नहीं आते, बट एटलीस्ट यू विल नो कि आप कहाँ लैक कर रहे हो, देन यू कैन इम्प्रूव ऑन दोज थिंग्स. एंड धीरे धीरे जब आप इम्प्रूव करोगे यू विल स्टार्ट स्कोरिंग गुड इन मॉक टेस्ट. ओके. सो व्हाट आर दोज इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू फील कि लास्ट में हर एस्पिरेंट को पढ़ लेने चाहिए जस्ट बिफोर द एग्जाम? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें. फॉर फिज़िक्स मैं कहूँगा मैकेनिक्स में रोटेशन है इम्पॉर्टेंट. एंड देन रोटेशन के अलावा मेरा वीक टॉपिक था ऑप्टिक्स, था मेरा वीक टॉपिक, वो काफ़ी मेरा गलत होता, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. एंड ये बेसिकली काफ़ी बल्क चैप्टर्स हैं. इलेक्ट्रोस्टैट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th फिज़िक्स का. फॉर केमिस्ट्री आई वुड से थर्मोडायनेमिक्स 11th का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक तो ऑलमोस्ट पूरी इंपॉर्टेंट है. 12th में भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं. इनऑर्गेनिक तो दोनों की पूरी इंपॉर्टेंट है, वो तो करनी ही करनी है. 12th में जो ये लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये लोग कभी बार स्किप कर देते हैं कि आता है, बट उससे हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है एंड देन पीपल मतलब लोग नहीं कर पाते.
एंड बायोलॉजी के लिए वही सब पूरा इम्पॉर्टेंट है, वो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट मेनली जो थोड़े वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स चैप्टर्स होते हैं, फॉर मी इट वाज लाइक प्लांट फिजियोलॉजी, वो काफ़ी वॉलेटाइल था, उसमें मिनरल्स का क्वेश्चंस होते थे, एनिमल किंगडम था वो भी काफ़ी वॉलेटाइल था, एग्जांपल्स याद करने होते थे. सो ये सारे चैप्टर्स एट द एंड आपको करने ही करने हैं रिवाइज जस्ट बिफोर योर नीट. Right. And just before the NEET, what are the 3 last minute tips and tricks that you would recommend to an aspirant जिससे वो अपना एग्जाम अच्छा दे सके? लास्ट मिनट टिप्स वुड बी, सो द फर्स्ट पॉइंट वुड बी कि आप अपना ज़्यादा रिवाइज मत करो. आपका जितना ऑलरेडी तैयारी होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है, आप ज़्यादा एंड में रिवाइज करके आप कंफ्यूज ही हो जाओगे. एंड सेकेंड वुड बी टू रिमेन काम एंड कंपोज, कि काम रहो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना. Third would be I think just believe in your parents and believe in God, उनका आशीर्वाद लो and then just go with the exam. That's great, very positive. So in this episode of CDWT, we have a new edition and that is called Ask the Senior, and I'm sure you're very tired कि मैंने इतने सवाल पूछ लिए हैं. तो I'm giving you the opportunity to ask me 3 questions. The catch is उनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दे सकता हूँ मैं. And those questions can be anything. They can be related to academics, they can be related to life at AIMS, they can be related to anything else that you want to ask. So go ahead. So first question would be क्या नीट के बाद मज़े हैं? Yes and no. Okay. And second question would be क्या attendance really important होती है आपके कॉलेज में? Yes and no. And the third question would be a personal one कि क्या आप relationship and academics balance कर सकते हो MBBS के? Yes, absolutely. Okay. So thank you for asking me those questions, and they also made me think about a few things about my MBBS life. And now we move on to another segment that is going to be the rapid fire round. So इसका फंडा ये है कि I will be asking you a few questions and you have to answer whatever comes to your mind first. So this is the fun segment of CDWT. So relax, and are you ready? Yes, sir. Your first question is, if you could know the absolute and total truth to one question, what question would you ask? About the origin of the universe. Okay. What's the most interesting thing you've read or seen this year? I read a book called The Compound Effect. Okay. What job would you be absolutely horrible at? Photography. Would you leave your hometown forever or stay in your hometown forever? I would stay in my hometown forever. Okay. What's something you've tried that you'll never ever try again? It would be a dessert called tiramisu. Okay, you ate tiramisu. Nice. What are you looking forward to in the next 10 years? I'm looking forward for a stable life, basically a good work and life balance. What is the one food that you would never give up? Paneer. Nice. So I think you answered those questions brilliantly, and Unacademy की तरफ से there's a special hamper for you. So here it is. Thank you. We have a tradition at CTWT कि जब भी कोई topper आता है तो we ask them to tag a topper so that we can get more experiences, so that our aspirants can learn as much as possible and वो भी अपनी preparation को और improve कर सकें. So who would you like to tag for this? So I would like to tag my batchmate Varad Jadhav from AIMS Delhi. Hi Varad, so we'll reach out to you soon, and हम चाहेंगे कि वरद भी CTWT पर आए, and जैसे अभिनव ने अपनी tips हमारे साथ share करी, aspirants को motivate किया, that Varad also does. So the takeaway message that I would want all the aspirants to take from this interview is that it does not matter if you are a dropper or not. It does not matter if it is your first drop or second drop. It does not matter if you take a coaching or if you do self-study. As long as you are confident and you have trust in your dreams, you can crack it and you will crack it. So do you have a final message for our aspirants? जो भी आप final message अपने aspirants को देना चाहें, जो भी आप droppers को बताना चाहें, so that they can sum up and consolidate their preparation strategy. So my final message would be calm and composed रहो throughout your journey. Be consistent. ज़्यादा हरी भी नहीं करनी हर चीज़ में, and just be calm, composed, chill करके पढ़ाई करो. अपने आप को देखो आप कहाँ लैग कर रहे हो and उस पर improve करो. Gymming करो, e-sports करो, and हाँ, वो भी अपनी hobbies पे completely give up मत करो. Just take out some time for your hobbies also.
Okay, thank you so much, Abhinav. That was amazing. It was great to hear your experiences. थैंक यू. हम और भी टॉपर्स को लाते रहेंगे CTWT पे जो अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिनसे आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, मोटिवेटेड रह सकते हैं. सो डू स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल ऑफ दैट. Till then, remember to like and share this video, drop your comments in the comment section below and subscribe to this channel. Thank you so much.